गरीबों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कहकर के जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस सरकार ने 11 लाख पद नहीं भरे हैं, सरकार के विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। ये हवाई जहाज में चलाने वाले लोग जो कह रहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में चलाएंगे। Good folks, this is Bob going to third phase of UP and Punjab. I'll cover Punjab tomorrow. But here's the thing, folks. Thing is that this is a critical phase. 113 have gone by and Sapa has done fairly well. This is Yadav belt. This is potato belt where Mulayams come out and there's a whole bunch of change in the game plan, the way the tickets have been distributed. Samajwadi Party has given some excellent ticket distribution. This is a seat which this is a place where got 59 seats and it had been swept by none other than the BJP. But Sapa this time needs to get back there. Is it going to get back there? Most likely, because the equations, as you can see, Deepak Sharma put it out for you. He's doing a really good job on that video. Will tell you that it's advantage Mulayam, advantage Akhilesh. But what is it that went against the government suddenly? Delhi objects to Singapore PM remark on tainted Indian MPs. Oh man, and praise of Nehru, right? Congress divisive. PM slams Channi for Bhaiya remark. He didn't say anything when the Sitaraman said help it, right? UP government withdraws CA recovery notices officials. Let's make a big deal about this, right? No college entry for girls in hijab. NHRC steps in. SP behind attack says Baghel. While MSY kin turns its stunt, cops book 27 Baghels on the run in Akhilesh land. PM Gandhi's take time out to pay tribute to Guru Ravidas. But the guy who really is looking like a cartoon is our Prime Minister. He's a chameleon. He changes clothes, changes besh, his dadi, gets him to be Rabindranath Tagore, gets him to be in a gufa, and now he's pretending to be Ravidas, right? In Karhal, Tipu is Sultan and Baghel has battle royal on his hand. Absolutely true. Mulayam enters campaign fray and Diddy. And what do you have here? Nehru, India has deteriorated, says Singapore PM. Delhi protest. Oh my God, give me a break, Jai Shankar. You're a product of Nehru, man. Don't be a turncoat, right? Karnataka now bans hijabs in state-run minority institutes. They're going to keep trying this, folks, till the elections. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का सेमीफाइनल जारी है और 2 चरण सेमीफाइनल के हो चुके हैं। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरा चरण पश्चिम और रोहिलखंड, और अब तीसरे चरण की बारी है। और जो फर्स्ट और सेकंड फेज थे, पहले और दूसरे चरण, उसमें जयंत चौधरी ने और अखिलेश यादव ने, इस जय वीरू की जोड़ी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जो प्रदर्शन किया है, जिस तरह से एक मुश्किल विकेट पर अपने बल्ले से रन बनाए हैं, उसने वाकई साहेब और चाणक्य को परेशान तो कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तीसरे फेज में जब बल्ला लेकर क्रीज पर अकेले होंगे अखिलेश यादव, क्योंकि यह गढ़ अखिलेश यादव का है, तो क्या अखिलेश यादव उस बढ़त को बरकरार रखेंगे? क्या यह जो तीसरा फेज है, जो बहुत क्रूशल है, क्या उसमें अखिलेश यादव वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा उन्होंने जयंत के साथ मिलकर फर्स्ट और सेकंड फेज में किया था? यह सवाल है, सबके जहन में यही सवाल है। और अब कैप्टन्स नॉक खेलनी है, कप्तान की पारी खेलनी। कप्तान खुद उतरा है बल्लेबाजी करने के लिए, और यह चरण इसलिए मजबूत है क्योंकि फेज 1 में 58 सीटों पर मतदान हुआ, 58 सीट्स पर। सेकंड फेज में 55 सीट्स पर, तो टोटल हो गई दोस्तों 113 सीट। और ये जो 20 फरवरी को ये जो मतदान होने जा रहा है, ये हो रहा है 59 सीट्स पर। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 172 सीट। 172 सीट पर फैसला बहुत जल्दी मशीनों में कैद हो जान रहेगा, क्योंकि ये यादव बेल्ट है। तो जाट बेल्ट, मुस्लिम बेल्ट और यादव बेल्ट, गिनती, गणित, समीकरण, इक्वेशंस, ऐसा लग रहा है कि जैसे नियति के साथ, प्रकृति के साथ, किस्मत के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान कर रही है, और अमित शाह और मोदी के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है फिलहाल अभी तक। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये तीसरे चरण की पोलिंग में, मतदान में क्या होने जा रहा है? क्या अखिलेश फिर से धुआंधार बैटिंग करने जा रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको यह बता दूं कि ये जो तीसरा फेज है वो इलाका कौन सा है, और उस इलाके को समझने के लिए आप जरा ये आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे देख लीजिए। ये जो एक्सप्रेस वे है, जो अखिलेश ने बनाया था, आप जरा इसको देखिए।
अब ये जो आगरा से लखनऊ तक का जो 300 किलोमीटर का पैच आपने देखा, जो आपने एक्सप्रेसवे देखा, बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे है, इसी के दोनों तरफ आप यूँ कह सकते हैं कि ये चुनाव हो रहा है। ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये या तो इसके दाएं हैं या बाएं हैं। और सादाबाद, आगरा से सटा हुआ सादाबाद से ही ये फेज़ शुरू हो जाता है और जो कानपुर तक गया है। और कानपुर अगर हम यूँ कहें कि लखनऊ से सटा हुआ है, तो मोटा मोटी ये जो एक्सप्रेसवे है उसके दोनों तरफ आप सोच सकते हैं कि चुनाव हो रहा है। जो लैंडमार्क है अखिलेश यादव की पिछली सरकार का। और ये आलू बेल्ट है, जो गन्ना बेल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड फेज में, ये आलू बेल्ट है। और आलू पर हम कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी 20 साल की अपनी सियासत में आलू के जितने भी किसान हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज उनके लिए बनवाना हो या तरह तरह की योजनाएं, नेताजी ने इस बेल्ट में काम किया है। और एक चीज़ और, ये जो तीसरा फेज़ है इसमें चीज़ आप और देखिएगा कि ब्रज क्षेत्र भी मिल रहा है इसमें बुंदेलखंड का इलाका भी है, झांसी है, ललितपुर है, कई जिले बुंदेलखंड के हैं। और इसमें अवध, मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका भी। तो 3 तरह के कल्चर्स भी हैं इसमें उन तरीके, जहां 20 तारीख को इसी फेज में जहां चुनाव होना है। अब दोस्तों एक चीज आपने नोट की होगी कि मंच पर योगी जी, मुख्यमंत्री जी, स्थानीय भाजपा नेता जो हैं उनसे झिकझिक कर रहे हैं, तलखी से पेश आ रहे हैं। और तलखी जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि जो शहर भाजपा का गढ़ का, मौर्य साहब जो मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं, ये फर्रुखाबाद गए 15 फरवरी को, फिर वही तीसरे फेज़ का मतदान जहाँ होना है। और आप खुद देखिए कि मौर्य साहब का यहाँ पर हाल किया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार चारों की चारों सीटें जीती थी, वहाँ का हाल देखिए। ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 3 महीने 4 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे, भूल गए क्या है? बड़े बड़े रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं, आपने भाजपा का कमल गिराया, इसमें खुशहाली आई है। अब दोस्तों मैंने सीधे फर्रुखाबाद में अपने एक पत्रकार मित्र को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई सुना है कि मौर्य साहब जो थे वहाँ काफ़ी नाराज़ थे। तो उस मित्र ने मुझे बताया कि सिर्फ 1000 कुर्सियाँ थीं जिसमें आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली रह गईं। और नाराज़ वो इसलिए हुए मौर्य साहब क्योंकि 4 MLA, सिटिंग MLAs, बीजेपी ने चारों सीटें जीती थीं, चारों भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को बुलाया था, सबसे कहा था कि आपको 2-2, 2,500 हज़ार लोग लाने, लेकिन 700-800 लोग भी जमा नहीं हुए, यानी एक उम्मीदवार 200 आदमी भी नहीं ला पाया। और इसीलिए मौर्य साहब, बहुत इन जिलों में चुनाव होने हैं जहां योगी जी घूम रहे हैं, जहां मौर्य जी घूम रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव की आज की जो रैलियां हैं, औरैया से लेकर आप कह सकते हैं पूरे इस बेल्ट में, जरा उसकी झलक भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही समझ गए होंगे, एक अच्छे जज की तरह आपने जजमेंट कर लिया होगा कि पल्ला जो है वो किसका भारी है। मैं अब इस पूरे फेज़ को डाइसेक्ट करने जा रहा हूँ, आपको आसानी से तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाने की कोशिश, और इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो तीसरा फेज़ समझ गए, तीसरा फेज़ समझ गए तो अखिलेश यादव की चाल समझ गए, रफ्तार समझ गए, और वो रफ्तार अगर समझ में आ रही है तो आप ठीक 7वें फेज़ तक उस परिणाम को जानना चाहते हैं जिसका नतीजे का इंतज़ार ये पूरा मुल्क कर रहा है। तो पहले बात करते हैं 59 सीट्स की। ये जो 59 सीट्स हैं, 55 सीट का था और ये 59 सीट्स, यानी सबसे बड़ा पोल यही है, मतदान यही है अब तक का। और 2017 में बीजेपी ने इलाका स्वीप किया, मोदी लहर में इलाका स्वीप किया, और 59 में से 49, 59 में 49 सीटें, 59 में 49 सीट्स वो बीजेपी ने जीती। और एक रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 9 जिले ऐसे हैं जहां पर यादव बहुमत में है, यादव निर्णायक है। जिस तरह से मुस्लिम्स निर्णायक थे सेकंड फेज में, और जाट और आप कह सकते हैं मुस्लिम का कॉम्बिनेशन फर्स्ट फेज में निर्णायक था, इस बेल्ट में, इस फेज में यादव निर्णायक है। और ये नेताजी के गढ़ से, इलाके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक बड़ी बात, जो मास्टर स्ट्रोक अखिलेश ने खेला है वो ये खेला है कि मैनपुरी, ये जो जिले हैं, ये जो 9 जिले हैं जिसमें मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, उसमें कानपुर देहात है, कन्नौज है, जहां यादव ज़्यादा है, इसी बेल्ट में इसका जो एपी सेंटर है, केंद्र बिंदु, मैनपुरी का करहल क्षेत्र है। और इसी करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये
समाजवादी पार्टी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से अखिलेश ने टिकट दिए, मैं आपको हमीरपुर और महोबा, ये दो जिले हैं, इनकी मैं आपको कहानी बताता हूँ, इससे आप कुछ तस्वीर समझ में आएगी। हमीरपुर और महोबा, यहाँ पर यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर प्रजापति भी हैं और यहाँ पर लोध भी हैं। लेकिन यहाँ का जो लोध है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? पहले आप ये विजुअल्स देखिए, आप ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो है चंद्रवती वर्मा, जिम ट्रेनर हैं और इनके पतिदेव वो भी जिम ट्रेनर हैं, और बीजेपी ने इस वीडियो को चला के बदनाम करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने इस महिला को, जिम ट्रेनर को, इसलिए टिकट दिया क्योंकि वहाँ जो पहले उम्मीदवार थे गयादीन अनुरागी, उनको लेकर थोड़ा सा बवाल हुआ, तो अखिलेश ने कहा कि चलो इस महिला युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। और इस महिला के जो पति हैं वो राजपूत लोध हैं, और राजपूत लोध इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन 1.5 लाख है। और वहाँ एक नारा चल पड़ा, जब इस महिला पर छींटा कसी हुई तो सारा का सारा लोध इस महिला के पीछे आ गया और उन्होंने कहा कि ये सब पर भारी है क्योंकि चंद्रवती बहू हमारी है। ये नारा चला वहाँ पर। राठ हमीरपुर में पूजा शुक्ला एक कार्यकर्ता थी जो जेल गई थी, ऐसे ही एक युवा कार्यकर्ता इलाहाबाद में जिसने लाठी खाई पुलिस की। ऐसे लोगों को भी टिकट अखिलेश यादव ने दिया है हौसला बुलंद करने के लिए कार्यकर्ताओं का। अब इसमें आप केशव देव मौर्य, जिनकी पत्नी फरुखाबाद से ज़िले से चुनाव लड़ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और भी कई, कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं उनकी मदर, इस तरह की जो टीम बनाई, फिर जयंत चौधरी और फिर अखिलेश यादव का खुद अपना एक बड़ा उनकी फॉलोइंग, कुल मिलाकर जो टीम है, टीम अखिलेश, वो इस तरह से एक संतुलित लगती है इस पूरे चुनाव में कि हर जगह एक ऐड जाऊँगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज़ के बाद जो जादू गठबंधन का दिखा हमको, ये एक ऐसा फेज़ है जहां अपनी पूरी टीम के साथ कप्तान खुद उतरा है और जो एपिसेंटर है इस पूरे फेज़ का, करहल मैनपुरी, वहाँ से वो बैटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने कानून राज्य मंत्री SP बघेल को अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ाया, एक मंत्री को भेजा चुनाव लड़ाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि अखिलेश को घेरो, एक मंत्री को भेजो, उसी को उम्मीदवार बना दो करहल में। बघेल साहब की हालत ये रही, कहीं तो वो आपा खो गए, कहीं गाली गलौज पतर आए और कहीं वो दौड़ाए गए। ये स्थिति है और यहाँ से आप तापमान का पता लगा सकते हैं। So my friends, in conclusion, as you can see from the video above and the video below and Deepak Sharma's analysis, pinpoint analysis, you can see the janoon and divanapan of these people coming to Akhilesh's rally. These are all youths, desperate youths. And if you see what's happening there, you can almost say it is game, set and match after this third phase. And it's in favor of Sappa and Jay and Veeru. Jai Hind. सदर पे और भरतना में पिछली बार 1500 वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता था। 1500 वोट कोई माने नहीं रखता किसी लहर में जीतने के लिए। तो इस बार निश्चित है कि वहाँ भी समाजवादी पार्टी अपना झंडा बिल्कुल ऊंचा करके रख रही है। तो आप ये बता सकते हो, जैसे इटावा की 3 सीटें जिसमें 2 सीट बीजेपी जीती, 1 सीट सपा जीती, उसके बाद आप मैनपुरी जाओगे, वहाँ भी शायद 3 सीट भी। Goal of a $5 trillion economy. Good, very good. I'll give you better goals. In 1990-91, India's economy was $325 billion. It doubled by 2003-04. Then the UPA government came. From $618 billion, it doubled to $1.22 trillion in 4 years. It doubled again to $2.48 billion in September 2017. It will double. It will double to $5 trillion. It doesn't require a prime minister or a finance minister. It will double. Why? That is the magic of compounding. Any money lender knows this. Any money lender knows this. Any borrower knows this. If the economy, nominal growth of economy is 12%, it will double in 6 years. If the nominal growth of the economy is 11%, it will double in 7 years. So I'm giving the finance minister a higher goal. You're going around the country saying we're going to build a $5 trillion economy by either 2023-24 or 2024-25, very wisely. If it grows nominally at 12%, it will double in 2023-24. If it grows nominally at 11%, it will double in 2024-25. But I'm giving you another goal. Please say that either you or your successor, whoever it may be, will double it to $10 trillion by 2028-29. He will double it to $20 billion by 2032-33. What is this great number of $5 trillion? It will always double every 6 years or 7 years. Because nominal growth will be 11 or 12. So please don't put this pie in the sky before the people and saying $5 trillion is equal to Chandrayaan landing on the moon. $5 trillion is simple arithmetic.